12 साल का था, उसको देख रहा था। तो उसको जब दोनों आंखों में सुई लग गई और उस टाइम पे आंखों में इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन का इलाज नहीं हुआ तो वो ब्लाइंड हो गया। वो ब्लाइंड हुआ तो उसने ये देखा कि यार मैं एक लैंग्वेज बना सकता हूँ। आज जो लोग ब्लाइंड है वो भी उस लैंग्वेज को सुनते हैं। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में आती हैं। देखिए, स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किलफुल मरीनर। Freak Folks presents to you Honest Talk. Today we are again back with one more great and leading personality for Honest Talk. For today's talk our guest will be Mr. Anil Bhasin, ex-President Havells India Limited. He has served the fast-moving electric sector of the Indian economy for over 3 decades. Served as president in over 10,000 crore Indian rupees super brand and among the fastest growing Indian MNC has been a long and satisfying journey. He joined Havells in 2004, since then setting one goal and achieving it relentlessly and moving on to another has been more of a daily habit than a ritual. He is recipient of prestigious awards like Lifetime Achievement Award by Amity University, Brick of Change Award by Mr. Amitabh Kant, CEO, Niti Aayog, Marketing Role Model Award by Top Rankers, Amity Leadership Award for Corporate Excellence, Entrepreneurial Excellence Award of the Year. He sincerely feels that this journey has been achieved only with the strength of building a team of professionals, trusting and believing in them. A journey that could truly be realized by understanding different shades and hues of marketing and the art of a motivational speaker blended with a perfect PR. Being a motivational speaker, he understands that the positivity gives the power to swim upstream and to rewrite one's own scripts. In other words, in an environment where competition is high and life is stressful, it is important to trust your team and give them independence to work. First of all, I welcome you to in this session. Thank you so much, sir, for joining and agreeing to share your thoughts with us. We are extremely very happy to have you for today's talk. Thank you. Thank you so much, sir. It's our pleasure. So, sir, moving to the topic of today's session, which we have chosen is handling challenging times. Challenges are the part of life. No one can escape from them. So, today I want to listen your thoughts on what should one's approach towards challenging time, how one can handle difficult situation, and what are the skills needed for that. Harsh, let me tell you the difference between the good times and the challenging times. It's always better to have the challenging times because when you have good times, you are happy. When you are happy, you are lazy, you are indisciplined. When you are in good times, you are loved. When you are loved, you are pampered. When you are in good time, you get success. When you get success, you get ego. When you are in good time, you are confident. And when you are confident, you become arrogant. कि मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता. And when you are in good times, you have harmonious relationship between your family, friends, and everyone. When you are having harmonious relationship, you take everyone for granted. Even your parents, family, friends, सबको लगता है कि यार इनको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो अपने घर के आदमी. When you are in good times, you are healthy, you are casual, you take all junk food also, pizza, burger, everything you take. And let me tell you what is the advantages of the difficult time or the challenging times. So you see, when you are in challenging times, you always do prayers. You are always disciplined. You take extra effort to do the things. You give your best. You want to bounce back, and you have a willpower to do the things. So first of all, let me tell you, it is always good to have challenging times rather than having good times, because in the challenging times, like the diamond is made when the charcoal is put under pressure. So it's always being better to have challenging times. And let me tell you,
how our mind works. You see, our mind works with the emotions. 70% of the decisions what we take it with the emotions. It's only 30% decision what we take with the logical thinking about it. You see, if the things are not, if we don't accept anything, and the difference is acceptance and non-acceptance. Let me put more focus on acceptance. If the things are not the way we want, we will get angry. And if we accept those situations, we will get tolerance. Let me give you one example, that if you are getting ready in the morning and your mother brings a cup of a glass of water, and some water spills over on your shirt or on your pant, and you don't expect that because you are going for an interview, so you become angry. And if same thing happens to you in a group discussion when you are sitting in a interview, and somebody colleague of yours does the same activity, or peon of that company does the same activity, you accept the situation and you get tolerance. कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, गिर गया, गलती हो गई उससे. So I think human mind works with this. And second thing is that we are going through very, very uncertain times. You see, nobody wanted to have this kind of a pandemic. Fortunately, this pandemic is for entire world. It is not only for India. तो हमें लगता है चलो यार पूरे वर्ल्ड में है तो कोई बात नहीं. So uncertainty को if you don't accept, like if you don't want to go for a bungee jumping, river rafting or mountaineering, तो आपको fear of death रहता है हर टाइम. बंजी जंपिंग में होता है मैं मर जाऊंगा कहीं ना कहीं. पर जो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, they treat it as an adventure. आप जब रिवर राफ्टिंग में जाते हैं तो जो उसको ओवरकम कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ, तो वो करने के बाद में उनको लगता है यार बहुत एडवेंचर आ रहा है. और if someone has and you don't have, you should not have jealousy कि यार उसके पास BMW Audi क्यों है. हर कोई तो एंटाइटल नहीं है अमीर घर में पैदा होने के लिए. और आप अगर गरीब घर में पैदा हुए हैं वो बाई नेचर है, पर आप ढाई गरीब करें वो आपकी चॉइस है. आप अमीर डेथ कर सकते हैं अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हैं. तो अगर if someone else has, you don't have, so you should have an inspiration. I normally say that I don't do a motivational seminar, I do an inspirational seminar. I can inspire you to motivate yourself. You can take a horse to a pond. You can't make the horse drink the water. And if someone hurts you, accept it and forgive him rather than having a hatred कि उसने मेरे को ये क्यों कहा. जिंदगी में देखिए हर कोई आदमी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा. So I think the major thing in this kind of a crisis is that you have to accept the situation and you have to respond to it. The meaning of responsibility is ability to respond. देखिए अगर आपको कोई कहता है आप गधे हो, तो आप उसको एक्सेप्ट ही मत करो कि मैं गधा नहीं हूँ. तो आप क्यों बुरा मनाओ उस बात, आप क्यों जस्टिफाई करते हो कि आपने मेरे को गधा क्यों कहा, कैसे कहा. तो महाभारत में दुर्योधन ने जो है वो उसको बोला गया था कि अंधे का बेटा अंधा है, वो था तो नहीं अंधा. So why he reacted to that situation? द्रौपदी ने कहा था कोई और भी कह सकता था. तो सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये देख लेना चाहिए कि आज की डेट में हम लाइफ में इम्परफेक्शंस के साथ जीते हैं. कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं है. आप ये लेके चलोगे लाइफ में हर चीज आपको स्मूथ सी मिलेगी, रेड लाइट नहीं होगी, आपकी गाड़ी ठीक चलेगी, गाड़ी ठुकेगी नहीं, कुछ अब बीमार नहीं होगे, हर टाइम हेल्दी रहोगे, हर टाइम हैप्पी रहोगे, होता नहीं है. तो आई थिंक एक्सेप्टिंग द सिचुएशन इज मोर इम्पोर्टेंट, and accepting with the reason, so you get tolerance, you get adventure, you get inspiration, and you can have a forgiveness nature. So that is the first thing which I see, that one should accept the situation which is there and then move forward with that situation. It was really a very quite insightful answer from your side, and I think the viewers, those who are watching this session, of course, they will listen from this and get inspired from it. And not only I think, but I strongly believe that it will happen. Sir, my next question to you is that I want to know your thoughts, how one can convert crisis into an opportunity. You see, I was reading the other day, the Braille language was written by a person called as Braille. He was son of a cobbler. When his father was doing that, वो मोची का काम कर रहे थे, तो by mistake उसकी आंख में वो दोनों सुइयां लग गई, और वो जो बच्चा था वो ब्रेल था, वो करीब उस टाइम पे 10-12 साल का था, उसको देख रहा था. तो उसको जब दोनों आंखों में सुई लग गई और उस टाइम पे आंखों में इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन का इलाज नहीं हुआ तो वो ब्लाइंड हो गया.
वो ब्लाइंड हुआ तो उसने ये देखा कि यार मैं एक लैंग्वेज बना सकता हूँ। आज जो लोग ब्लाइंड है वो भी उस लैंग्वेज को सुनते हैं। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में आती हैं। देखिए, स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किलफुल मरीनर। आप देखें, मैंने आपको जैसे पहले एग्जांपल दिया है, जो डायमंड अगर बनता है तो डायमंड तभी बनता है अगर आप उसको प्रेशर डालते हो, उसको अंदर रखते हो। देखिए, अगर न्यूटन जो है पेड़ के पीछे नहीं पेड़ के नीचे नहीं बैठा होता, उसके ऊपर सिर पे सेब नहीं गिरता, तो कहीं ना कहीं वो नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं एडवर्सिटीज आती हैं, उसमें से ही अपने को पॉजिटिविटी देखनी है कि क्या है क्या नहीं। आप देखिए, ये तो आज हम बात कर रहे हैं, 1914 में पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी और 1918 में वो स्पेनिश फ्लू आया था। और स्पेनिश फ्लू तो क्या, वो यूरोपियन फ्लू था, उसका नाम स्पेनिश फ्लू बाद में पड़ गया क्योंकि स्पेन ने पहले उसको पब्लिक कर दिया कि ये स्पेनिश फ्लू है। वर्ल्ड वॉर वन में करीब करीब 2 करोड़ लोग मरे थे। स्पेनिश फ्लू में करीब करीब 5 करोड़ लोग मरे थे। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 आया, उसके बाद इंडो पाक पार्टीशन आया, उसके बाद कई चैलेंजेस आए। उस टाइम पर हमारे पास में इस तरह की कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं था, इस तरह की मेडिकेशन नहीं थी, इस तरह का कुछ नहीं था। तो आई थिंक वो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, व्हेन दे हैव सर्वाइव्ड एंड दे हैव लिव्ड दोस काइंड ऑफ अ क्राइसिस, तो आई थिंक वी आर ऑल फॉर्चुनेट टुडे, वी हैव अ कम्युनिकेशन, वी हैव एवरीथिंग विद अस, सो वी शुड बी एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन इन अ मच बेटर वे। और क्राइसिस में ही जो है वो निखर के कोई ना कोई चीज आती है। जैसे सोने को जब तक आप भट्टी में नहीं डालोगे तब तक वो चमकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो आपको देखना चाहिए कि चट्टान में तो सर मूर्ति होती है, उसमें से जो अनवांटेड चीजें हैं वो निकालनी पड़ती हैं। आपको बॉडी में जो है भगवान ने अच्छी बॉडी दी है, पर अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो वो भी खराब हो जाएगी। तो आई थिंक वी आर ऑल फॉर्चुनेट दैट वी आर ऑल healthy, we are not physically challenged. There are many people those who are physically challenged. Whenever I get demotivated, I look toward a blind fellow. वो जिंदगी कैसे जी रहा है? मैं अगर आंख बंद कर लूं तो मैं अपने घर के बाहर नहीं निकल सकता, और वो सारी जिंदगी आंख बंद करके काटता है। भगवान ने कहीं ना कहीं उसको भी ऐसी स्किल दी है, स्मेलिंग की है या हियरिंग की है, कि वो समझ लेता है कि आगे क्या होने वाला क्या नहीं। All right, sir. Again, it was really very quite insightful. I think it was really a very inspiring answer from your side. And the point which you mentioned, one which I like the most, is that smooth sea never make a skillful mariner. Sir, my next question to you is a very small or a very well said quote is there: necessity is a mother of innovation. Sir, I want to know your thoughts over it. How do you look this? You see, Harsh, in my most of the webinar, I say human being is ill-equipped and defenseless. हम इंसान जो हैं ill-equipped हैं और defenseless हैं। हम ना तो चिड़िया की तरह उड़ सकते हैं, ना ही हम मछली की तरह स्विम कर सकते हैं, ना ही हम मंकी की तरह एक पेड़ पे चढ़ सकते हैं, बिल्ली की तरह पेड़ पे चढ़ सकते हैं। हम ill-equipped हैं। अगर आपके सामने एक बंदर का बच्चा आ जाए, आप उसको भी हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि आप ill-equipped हो। आप कैसे उसको हैंडल करो अनलेस आपके पास कोई टूल ना हो। और हम डिफेंसलेस हैं। एक कुत्ते का बच्चा भी अगर आपके पास में आ जाए, आप उसके डिफेंस में कुछ नहीं कर सकते। बट भगवान ने हमारे को एक अच्छी चीज दी है, एबिलिटी टू थिंक। देखिए, जो भी इंसान ने सोचा है उसको पाया है। आज जो एनवायरनमेंट में हम बैठे हैं, वो एनवायरनमेंट हमारे से पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या फोरफादर्स ने सोचा होगा और उसको इम्प्लीमेंट किया होगा। तो वन गुड थिंग विच गॉड हैज गिवन इज द एबिलिटी टू थिंक, and whatever you can think, you can do it. You see, Napoleon Hill says, if your mind can conceive it, and your heart can believe it, I am sure you can do it. देखिए, पहले तो माइंड को कंसीव करना चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ, ताजमहल कितनी बारी बना या कोई भी बिल्डिंग कितनी बारी बनती है? एक्चुअली 3 बारी बनती है। पहले वो दिमाग में आई शाहजहां के कि मेरे को कुछ बनवाना है, फिर आर्किटेक्ट ने उसको पेपर पे बना के दिखाया, उसको बताया कि इस तरह से बन सकती है, और फिर वो फिजिकली बनी। तो कुछ भी चीज अगर हम कंसीव कर लें और फिर उसको इरादा अगर हमारा बुलंद हो, तो वो चीज हमारी हो सकती है। तो आई थिंक पहले कंसीव करना बहुत जरूरी है और बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। कई बार हम बड़ा सोच तो लेते हैं पर उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। मैं अपने वेबिनार्स में कहता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड डज नॉट गारंटी यू फॉर एनी सक्सेस। Positive attitude with proper action, I will repeat, positive attitude with proper action increases the probability of success, does not guarantee you for any success. अभी आप पॉजिटिव हो, मैं आपको बोलता हूँ आप 4थी मंजिल से नीचे छलांग मारिए, आप मार नहीं सकते,
क्यों? क्योंकि जब तक आप प्रॉपर एक्शन नहीं करेंगे, जब तक आपके पास रस्सी नहीं होगी, जब तक आपके पास सीढ़ी नहीं होगी या कोई टूल नहीं होगा, तब तक आप उतर नहीं सकते। तो खाली पॉजिटिव थिंकिंग सोचने से, कि अगर पॉजिटिव थिंकिंग के कैप्सूल बिकते होते तो आज कोरोना से ज्यादा वो वाले बिक रहे होते। आई थिंक हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्शन करना बहुत जरूरी है। देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है। कितने लोग ऐसे हैं जो ओलंपिक्स में जाके गोल्ड मेडल लेके आते हैं? नहीं लेके आ सकते। 100 मीटर की, 200 मीटर की रेस तो आप और मैं दोनों दौड़ सकते हैं, पर हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। देखिए, टूल्स तो सबके पास होते हैं, पर स्किल होनी बहुत जरूरी है। कि स्किल अगर आपके पास नहीं है, आज जो बैट सचिन तेंदुलकर यूज करते हैं, कोहली यूज करता है, धोनी यूज करता है, वो आप और मैं खरीद सकते हैं, पर उसको, बैट को कैसे खेलना है वो स्किल होती है। आज टूल सबके पास कॉमन होते हैं सर्जरी के, पर जो अच्छे सर्जन होते हैं वो इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनके पास वो स्किल होती है काम करने की। तो आई थिंक स्किल इज ए मोर इम्पोर्टेंट, विल पावर इज मोर इम्पोर्टेंट। कि कुछ कर गुजरने की आप में क्षमता होनी चाहिए, कुछ करने की, वो अगर है आप में है, तो आप में सेल्फ बिलीफ भी होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। हम कई बार बाकी लोगों को सलाह देते रहते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, पर वो खुद को इम्प्लीमेंट नहीं करते। मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो शाम को सोने से पहले ब्रश करते हैं? बहुत कम लोग हैं। हमें सब पता है कि अच्छी आदतें क्या हैं, पर अच्छी आदतों को इम्प्लीमेंट करने में भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, और जो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं वो लोग ही विनर होते हैं, बाकी सब लोग फॉलोअर ही रहते हैं। All right, sir. Again, you have mentioned very important points, and I think the viewers, those who are watching this session, of course, it will be beneficial for them. And I think it's a kind of privilege that today we got a chance to listen all these things from you. Sir, my next question to you, sir, I want to know your thoughts. What can be the role of innovation and technology on entrepreneurship, especially in developing countries? You see, this is a phase of innovation. We have seen more of religious revolutions. We have seen more of scientific revolution. We have seen political revolution, World War I revolution. We have seen Green Revolution. Today is now the technological revolution. You see, in the last 20 years, technology has changed very fast. The kind of changes what has happened in the last 20 years, nobody even thought of it. You see, when mobile came, or we have seen the faces of the mechanical watches now to everything has come to the mobile. You see, we have seen the Sony TV, Sony music, or the T-Series or HMV, everything has gone now to the mobile. Everything is now in mobile. So technology has changed. आज स्कैनर आ गए, पहले जो है टेलेक्स है, फैक्स है, सब होती थी, आज स्कैन भी जो है वो मोबाइल में हो गया. So I think technology has changed very fast, and unless we as the generation we cope up with the technology, I think we will be left behind. And my request to all the youth of India is there. We are very good in IT, but we are not very good in technology. We are still having borrowed technology, which we are using from the borrowed world. So, and let me tell you, the first generation entrepreneur can drive with passion. But the second generation, when the companies become big, you have to drive with the technology and processes. So unless you have improved technology, anyone can copy your product in the next 3 months or 6 months, because in the today world, everything can be copied very fast. Or technology is available. It is not a secret of you that you are only having that technology. So unless your R&D is very strong, and those companies like Apple, they spend more on the technology. That is why they bring the product where the customer is ready to pay the price. And let me tell you, if you have a technology, then you will be a brand. If the customer buy the product according to his budget, then you are in business. अगर कस्टमर अपने बजट के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदता है तो आप बिजनेस में हैं. बट इफ द कस्टमर हैज टू एडजस्ट हिज बजट टू बाय योर प्रोडक्ट, देन यू आर अ ब्रांड. आज एप्पल फोन लेने के लिए, सोनी टीवी लेने के लिए कस्टमर को बजट को थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है. जब तक वो स्ट्रेच नहीं करता तब तक ब्रांड नहीं है. तब तक तो कोई भी जाके टीवी खरीद सकता है, कोई भी फोन आज की रेट में 10-20-30 हजार रुपए का मिल जाता है. आई थिंक ब्रांड्स जो बनते हैं वो बैकअप फॉर द टेक्नोलॉजी ही बनते हैं. कि अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो आप अच्छी तरह से उसको यूज कर सकते हैं.
All right, sir. Sir, my next question to you is, I have a question from one of my subscriber. Sir, is I'm audible to you? Yes, you are All right. audible. Sir, I have a question Yes, from you one are of, audible. I have a question from one of my subscriber. Also, the question is how to foster innovation and creativity within organization. You see, India education system is not good. Let me tell you, Britishers ruled us. The answer in yes or no. So in school, we are only taught about memorizing a thing and then rewriting into a paper for 3 hours. So education system is not good. We have never been taught of giving any creative job. जब हम स्कूल में जाते हैं कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई जाती. तो आई थिंक क्रिएटिविटी और इनोवेशन जब तक हम ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर नहीं बनाएंगे तब तक जो है वो बनेगा नहीं. और ये खाली बोलने से नहीं होता, हमारे को एजुकेशन सिस्टम भी चेंज करना पड़ेगा. मैं आपको बताता हूँ, एक बीटेक जो लड़का करता है और जो एमबीए करता है, जब तक वो बीटेक कर रहा होता है तब तक वो मेमोरी का रिप्रोड्यूस ही कर रहा होता है पेपर्स में, उसको क्रिएटिविटी कहीं सिखाई नहीं जाती. पर जो वो एमबीए करता है तो एमबीए में काफी कुछ चीजें उसको एक्सपोजर दिया जाता है जहाँ पे इंटरैक्टिव चीजें दिखाई जाती हैं. तो आई थिंक हमारे को जो एजुकेशन सिस्टम में भी क्रिएटिविटी लानी चाहिए. हमें बच्चों को कुछ ना कुछ खुद को करने के लिए करना चाहिए. हमारी पेरेंटिंग भी कहीं ना कहीं गलत, पर उनका दिमाग बहुत क्रिएटिव था. आप स्टीव जॉब को देखो, तो वो स्टीव जॉब जो है वो कभी कॉलेज से ड्रॉप आउट ही रहे, पर कहीं ना कहीं उनमें वो एक क्रिएटिविटी थी कि उनको जो भी कुछ काम करना है वो अच्छी तरह से. तो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा हमारे को क्रिएटिविटी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी इनोवेशन की तरफ काम आना चाहिए. अगर खाली उसको ये बताते रहे कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तो आदमी अपना दिमाग लगाता ही नहीं है. और जब भी आदमी दिमाग लगाएगा तो कहीं ना कहीं कोई गलत काम करेगा, और उस गलती को भी हमारे को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, वो कहते हैं गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है. बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है. न्यूटन ने भी जब थॉमस अल्वा एडिसन ने भी जब बल्ब की इन्वेंशन करी थी तो 10,000 बारी वो ट्राई किया था, उसने फेल नहीं हुआ. तो कहीं ना कहीं इनोवेशन के लिए बहुत ज्यादा पैशन भी जरूरत होती है, टाइम भी लगता है, और गलत भी होता है काम. एक बारी में भी कभी अगर आपने साइकिल चलानी सीखी हो या स्विमिंग सीखी हो, तो एक दिन में चाहे आप जितना भी कुछ कर लो, एक दिन में सीख नहीं सकते. आपको एक टाइम ड्यूरेशन लगती है उस काम को करने के लिए. और कोई भी काम करना, स्टार्ट करना आसान है, बंद करना आसान है, पर उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है. आई थिंक जिम में जाना आसान है, जिम में ना जाना और भी आसान है, पर कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है. और वही मैंने जैसे कहा, हैबिट्स जो हैं वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो एक अच्छी हैबिट को कंटिन्यूअसली करते हैं. All right, sir. Again, you have mentioned so many important points, and I think there is a lot to learn from you. And the kind of energy you brought into this session, it was really, really very, very inspiring. But today, sir, I don't want to take you much time. So, moving to my last question of this session. So, the question is, how technology is changing the way we live, work, and we learn? You see, when I started my career almost 4 decades ago, things were all manual. So we used to write reports with hand. There was no computer, and when the first computer came also, we were all we were not that confident कि कंप्यूटर से काम हो जाएगा. हम ये लोग कहते थे नहीं यार, हाथ से ज्यादा अच्छा है. वो मैनुअल रिपोर्ट बनती थी, फाइनेंस की बहुत अच्छी होती है. आप देखिए 20 साल, लास्ट के 20 साल में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए. चाहे वो व्हाट्सएप आ गया, अब व्हाट्सएप किसी ने देखा नहीं था कि व्हाट्सएप कैसे आएगा, मैसेजेस कैसे जाएंगे. आज चाहे गूगल है, आप देखिए गूगल मैप आ गया. गूगल मैप कितना आसान हो गया. पहले हम पान वालों से पूछते थे, रुक रुक के गाड़ी से, रेडी वाले से पूछते थे वो घर कहाँ है, ये काम होगा. अगर आज आपको गूगल में जाना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है. आप देखिए ओला उबर आ गया. आपको किसी भी कंट्री में चला जाओ, आपको टैक्सी से डर नहीं लगता कि भाई मेरे को कहीं जाना है, टैक्सी वाला बेवकूफ बनाएगा, ये बनाएगा, वो होएगा. ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया. अब सब लोग बिजी हैं. आप फोन में देखिए कितने फीचर आ गए कि आप जो है वो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं. देखिए ये सब टेक्नोलॉजी की दौलत है कि आपकी जो है वो टेंशन दूर हो जाती है. आज अगर आप विद द टेक्नोलॉजी द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैज बिकम हिस्ट्री. आज अगर आपका बच्चा कहीं पे भी बैठा है या आपके पेरेंट्स कहीं पे बैठे हैं, अगर आप उनके साथ में वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि यार वो किस मूड में है, ठीक है, नहीं है. एटलीस्ट बात हो जाती है, तसल्ली हो जाती है. हमारे टाइम पे तो वो MTNL का फोन आता था, लाइन लगती थी और उसमें वो एक कैसेट चला करती थी.
आप प्रतीक्षा में हैं और आपके इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं। तो उस तरह की भी टेक्नोलॉजी पहले थी, और अब टेक्नोलॉजी जो आ गई है उसका इतना फायदा है कि हमारी लाइफ जो है बहुत सिंपल हो गई है। आज एक स्मार्टफोन के बीच में, चाहे वो 3 साल का बच्चा है वो भी अपना कुछ ना कुछ राइम सीख रहा है, चाहे वो 70-80 साल का बुजुर्ग है वो भी उसमें अपने भजन सुन रहा है, कोई ना कोई अपनी लाइफ को सुन रहा है या अपने बातों से कर रहा है, दोस्तों यारों से बात कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, कहीं ना कहीं एंगेज है वो। तो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा फायदा है। देखिए, पहले हम रेलवे स्टेशन पे जाते थे टिकट बुक कराने के लिए, एयरलाइंस पे जाते थे, वो खिड़की में से हाथ डालना पड़ता था। अब वो सब चीजें जो है हिस्ट्री हो गई। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज चेंज सो फास्ट। आज अगर आपको ट्रेवल करना है, आज देखिए, कभी हमने सोचा नहीं था कि हम जूम कॉल पे भी ऐसा रिकॉर्डिंग करेंगे। अब ऑफिस के सारे काम जो है वो हो रहे हैं अपना टीम्स पे हो रहे हैं, कुछ जूम पे हो रहे हैं, पढ़ाई जूम पे हो रही है। ऐसा कभी किसी ने सोचा था कि 6 महीने तक लोग घर पे बैठेंगे और पढ़ेंगे भी टेक्नोलॉजी से? तो आई थिंक टेक्नोलॉजी तो पहले भी थी, और अब हमने उसको यूज करना अच्छी तरह से सीख लिया है। देखिए, अगर आप यूज नहीं करेंगे, एक फ्रूट में तो जूस होता है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे निकालेंगे। और लाइफ का हर्ष, मेरा ये फंडा है कि लाइफ को ना ऐसे पिकनिक जीना चाहिए। बर्थ और डेथ के बीच में एक डिस्टेंस ऑलरेडी डिफाइंड है। बर्थ तो हमारा हो गया, डेथ का किसी को पता नहीं है। अगर पता लग जाएगा तो भगवान ने हमारे हाथ में दे दिया। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, हमारे को भगवान ने इस प्लेनेट पे इस बॉडी को ड्राइव करने के लिए अपने ऊपर दिया है कि आप ही इसको खुद ड्राइव करो, कोई और ड्राइव नहीं करेगा। और इसको रोज हमारे को रीबर्थ होता है। जिस दिन हम सोते हैं रात को, तो कहीं ना कहीं हम हाफ डेड होते हैं। उस टाइम पे बॉडी मेंटेनेंस कर रही होती है, सर्विस स्टेशन हो जाता है हमारा बॉडी का। सारे ऑर्गन जो है हमारे सर्विसिंग के लिए चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। हम उसमें कुछ करते नहीं है अपनी तरफ से। पर जब हम उठते हैं तो हमारे को एक फ्रेश डे भगवान देता है, उसको हम कहते हैं रीबर्थ। तो जब भी मैं लाइव सेशन करता था तो मैं कहता था कि मेरा आज बर्थडे है, और मैं प्रैंक करता था कि बर्थडे नहीं है, और मैं कहता था रीबर्थ है। तो हमारे को भगवान ने रीबर्थ दिया है इस प्लेनेट पे। जैसे हम पिकनिक मनाने जाते हैं एक दिन के लिए, तो हर रोज को पिकनिक ही मनाना चाहिए। और मैं लास्ट में बोलूंगा, वो कहते हैं जिंदगी सभी के लिए एक हसीन किताब है। जिंदगी सभी के लिए एक हसीन किताब है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है और कोई किसी का दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है। हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, झीलो तो जिंदगी और खो दो तो यादें हैं। तो live like a king, live like a queen. We all have been blessed by God, and we all should be grateful to God that शुक्राना करना चाहिए कि हमारे को एक दिन अच्छा दिया है, कि हमें हमारे सर पे छत है, हमारे पास खाने को है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वो भी चीजें नहीं है, तो हमारे को शुक्राना रोज करना चाहिए। एंड लास्ट में मैं बोलूंगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने 3 लर्निंग दी थी सिखिज्म के लिए, कि वी शुड बी केयरिंग, डेयरिंग एंड शेयरिंग। हमें लोगों की केयर करनी चाहिए, हमें लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और हमारे में डेयरिंग होना चाहिए कि कोई भी बोल्ड डिसीजन या कोई भी पेंडेमिक को या कोई भी ऐसी अनसर्टन कंडीशंस आ जाते हैं, चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं, उसको हम छाती चौड़ी करके फेस करें, ताकि वो भाग जाए हमारे से, रादर देन कि हम उससे डर के दुबक के अंदर बैठ जाए। All right, sir. It was really very motivating and inspiring for all of us. And thank you so much, sir, for joining and giving your important time. I think it was really a very healthy discussion with you on the topic. And I would like to wrap up this session with the Guru Gobind Singh, sir, quote, life should be daring, caring, and, sir, I am little forgetting. Can you please correct me? शेयरिंग। शेयरिंग। देखिए, अगर हमारे पास में कुछ है तो हमें बांटना चाहिए। जैसे सोनू ने बांटा, लोगों को दिया पैसा, अपने पास रख के क्या करोगे? अगर आपके पास 10 रोटी हैं, आप नहीं खा सकते, आप शेयर कर लो तो क्या है? उसमें कुछ जाता नहीं है। और अगर आप किसी की केयर करते हैं तो और अच्छा। देखो, आपको दादी और नानी क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि आपकी केयर करते हैं। तो केयरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, और डेयरिंग होना चाहिए। देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग हम अगर डर के रहेंगे तो जानवर हमारे को जो है खा जाएंगे। तो हमारे को कहीं ना कहीं, अगर भगवान ने हमारे को वो दी है एबिलिटी टू थिंक कि कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, तो उसको एक अच्छा प्लेनेट बनाना चाहिए। आई थिंक अभी जो पेंडेमिक ने हमारे को जो लर्निंग दी है, वो ये दिया है कि नेचर डिजर्व्ड द रिस्पेक्ट, और हमने उसकी रिस्पेक्ट करी नहीं, इसलिए उसने हमारे को घरों में उठा के रखा। All right, sir. It was really a very great discussion with you. Thank you so much, sir, for joining and giving your important time.
We look forward to conduct more Thank sessions you. with you in future. Thank you, Harsh, for conducting this, and I wish you all the best in your life and in your career. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Take care. Bye. On the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold